Good morning, friends. This is Dr. Nidal Gupta, and we are doing MPC 46, Block 1, Unit 3. So, the topic is Eastern and Western Perspectives on Positive Psychology. तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं. पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंट्रोडक्शन, then distinction between Western and Indian psychological perspective. See, I have marked it star. So the topic is important for exams. Then implications of culture for positive psychology. Again, it is star marked. Positive psychology and Indian psychological perspectives, religious and spiritual practices for enhancing well-being. So these are the learning objectives. We come to the introduction. So इसमें बताया गया है कि whenever you read a newspaper और watch a television और कोई popular magazine आप देखते हो तो आपको incidents बहुत ज़्यादा जो दिखते हैं वो incidents you read about or you get aware about are the people indulging in conflict, violence, corruption, crime and other kinds of deviations from moral and ethical norms. ठीक है. एंड इन कंट्रास्ट आपको रिपोर्ट्स बहुत कम मिलेंगी कॉपरेशन, ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, चैरिटी और कंपैशन की. सो व्हाट डज इट इंडिकेट? डज दिस इंडिकेट दैट पीपल आर नॉट हैप्पी और दे सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स, और द स्टोरीज ऑफ होप्स, वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स and resilience do not excite people as much as stories of conflicts, violence and negativity. So see, this is a bitter truth. We enjoy the stories of conflicts, we enjoy the stories of crimes, although we will criticize them, but we will enjoy and we will read them. Okay, so we also find that people in general want to attain peace of mind, happiness and well-being. See, so this is very contradictory कि although we always want to have a peace of mind, happiness, well-being, then also on the contrary we enjoy the stories of conflicts, violence and negativity. So coupled with a strong belief in individualism, and the modernistic ideology has created a state of cutthroat competition and fueled desire to pursue incessant needs and accumulating more and more resources. So एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है बिकॉज जो सप्लाईज हैं वो कम हैं. ठीक है, अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है एंड द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द इंडिविजुअलिस्टिक, you can say their desires and their needs and their desire to accumulate more and more resources. So now the happiness contingent upon the attainments in outer world, these are subject to availability of and access to material resources. So as earth's carrying capacity is limited and these resources are not in sufficient supply, so what it causes? Frustration, conflict and aggression. बिकॉज सप्लाईज हमारी बहुत लिमिटेड हैं एंड डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, सब एक्यूमुलेट करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, सो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन. वी ऑल्सो नोट दैट एक्सपीरियंसेस ऑफ स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड अदर नेगेटिव इमोशंस आर शोइंग अ स्टीप राइज एंड पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली elusive. So this is probably the reason why we are having increased instances of frustration and negative emotions, and the happiness and positive and peace of emotions are getting elusive. So the modes of human interaction with circumstances in the external world and the state of inner world, so these are dynamically related. So you may notice that the speed of social change has gone up owing to the introduction of increasingly advanced and sophisticated technologies in areas of transportation, communication and entertainment. अब इसमें मास्लो की ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बात की गई है, वेयर ही फोकसेस ऑन बिल्डिंग द ह्यूमन स्ट्रेंथ्स. ओके, एंड ऑल्सो मार्टिन सेलिगमैन, जिसके बारे में हमने यूनिट 1 में पढ़ा है, he also reminds us to study the value of strengths and virtues, and treatment is not fixing what is broken, it is nurturing what is best within ourselves. So this line is important कि as per Seligman,
या मास्लो दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया हुआ है कि मास्लो इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन बिल्डिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ्स, ठीक है, दे आर फोकसिंग ऑन नर्चरिंग व्हाट इज बेस्ट विद इन आवरसेल्व्स। तो हमारी स्ट्रेंथ्स को एनहांस करने के लिए, उसे सरफेस पे लाने के लिए जो प्रोसेस होता है, दैट द सेलिगमैन एंड मास्लो आर टॉकिंग अबाउट। So positive psychology tries to address the challenges involved in conceptualizing, assessing, nurturing human strengths and at individual and organizational levels. तो जो किसी ह्यूमन की स्ट्रेंथ्स हैं वो अपने बेस्ट पोटेंशियल पर आ जाएं, ही बिकम्स द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, सो दैट विल बी बेनिफिशियल टू द इंडिविजुअल हिमसेल्फ ऑल्सो एंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही इज वर्किंग. So it emerged as protest against the deficit model prevalent in practice of psychology. Then positive psychology shared the assumptions about social and psychological reality, attributes of human nature, and methods of investigation with mainstream psychology. So it retains the perspective of mainstream psychological science and expands its agenda by incorporating theme of human strengths and positivity. तो अगर हम इंडियन साइकोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर, द स्ट्रीम ऑफ इंडियन साइकोलॉजी विच इज़ रूटेड इन वास्ट इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, it offers comprehensive and integral approaches to reality encompassing physical, social, psychological and spiritual layers of existence. So its strategy is to maintain harmony with nature from a symbiotic perspective. Thus, it goes beyond the pursuit of self-interest and offers maintaining balance, that is samya, as a central concern. So, as per Indian psychology, जो focus है that is to maintain harmony with nature. Indian psychology के according कि जितना हम nature से close रहें, जितना हम you can say कि artificial चीज़ों से दूर रहें, ठीक है, उतना हम लोग जुड़ेंगे स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है, और वेलबींग से, और उतना हमारा एक बैलेंस मेंटेन रहेगा बॉडी में. सो नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन साइकोलॉजिकल. सो नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. So mainstream psychology is primarily a product of Euro-American cultural milieu. And modern psychology grew in context of modernity, industrialization and development. So today psychology is considered as a science focusing on mental process and behaviors with the help of empirical methods. So there are many new developments that are constructionist in approach and opening up to respect culture, subjectivity and use of qualitative methods. अब इसमें एक दो साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए हैं जो इंडिया में पॉपुलर रहे हैं, जैसे डॉक्टर एन सेन गुप्ता, देन विलियम वुंड. दे आर कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. एंड डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस वॉज इंटरेस्टेड इन साइको एनालिसिस एंड completed his first doctoral research in psychology on concept of repression. अब यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इंडियन साइकोलॉजी वॉज यूज्ड बाय जादूनाथ सिन्हा टू प्रेजेंट अ रिव्यू एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिपर्टायर ऑफ रिच इंडियन नॉलेज सिस्टम्स रिलेटेड टू मेंटल फंक्शंस एंड कॉन्शियसनेस. तो इंडियन साइकोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी बिकॉज उसका जो भी आप कह सकते हैं कि जो कल्चर था या जो नॉलेज थे या जो बुक्स थी, ऑथेंटिक बुक्स जो थी, दैट वर ऑल रिलेटेड टू मेंटल फंक्शंस एंड कॉन्शियसनेस. तो बहुत ज़्यादा मेंटली माइंड किस तरह से काम करता है, वर्क करता है, हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इंडियन साइकोलॉजी के जो लिटरेचर था उसमें बहुत ज़्यादा बात की गई थी. सो द मेथड्स ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर की. तो जो लिटरेचर था हमारा इंडियन साइकोलॉजी में, सबसे पहले जो बहुत डाइवर्स और बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ वैदिक लिटरेचर. बहुत ऑथेंटिक है. दैट कंसिस्ट ऑफ वेदास, अरण्यका, ब्राह्मणा, उपनिषद्स, वेदांगा, स्कूल ऑफ थॉट सच एज वेदांता, संख्या, योगा, वेशिका, मीमांसा, आयुर्वेदा, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड तंत्र.
So the position of Sarvaka comes close to the materialistic view held in modern psychology, and it did not consider any reality beyond what is perceivable through sensory modality. तो इन सब में से जो सर्वका था वो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक व्यू पर था, और वो उन्हीं चीज़ों की बात करता था, उसी को रियलिटी मानता था जो हम अपनी 5 सेंसेस से देख सकते हैं या फील कर सकते हैं या सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, वो उसी की ही बात करता था. इट एडवोकेटेड दैट वन शुड एंजॉय लाइफ थॉरली, मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन. तो एक मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट के बारे में सर्वका ने बात की, ठीक है. लेकिन जो मोस्ट अदर अप्रोचेस थी दैट वर करेक्टराइज्ड बाय डीप बट डाइवर्स काइंड्स ऑफ एंगेजमेंट एंड ट्रांसडेंटल रियलिटी. सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसडेंटल. ऑल्सो देयर एग्जिस्ट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स एंड इंसाइट्स इन लिटरेचर्स लाइक शास्त्र, महाभारता, रामायणा, स्मृति टेक्स्ट, पुराना, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एंड कामशास्त्र. सो ये सब जो लिटरेचर थे इसमें बहुत ज़्यादा इंसाइट्स दी गई हैं इंडियन डिसिप्लिन और इंडियन साइकोलॉजी के बारे में. सो देयर इज़ अ नीड टू फैमिलराइज आवरसेल्व्स विद द क्लासिकल इंडियन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. So Indian psychology is the study of the person जीवा. So see, this is very important. यहाँ से आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है. इसमें काफ़ी कुछ जो है आपके जो इंडियन लिटरेचर्स हैं, आपके गीता, आयुर्वेदा, वेदास एंड उपनिषद्स, all the authentic literatures of Indian psychology, and they are tried to give a summary of that. Okay? तो जो इसके बेसिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप अगर ये समझ लें तो आप काफ़ी हद तक अपने एंशिएंट लिटरेचर को समझ पाएंगे. तो इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जब हम किसी पर्सन को स्टडी करते हैं तो उस पर्सन को हम जीव बोलते हैं. ओके, सो इफ़ वी स्टडी अ पर्सन जिसको हम जीवा बोलते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड एंटिटी एज जीवा इज़ ट्रांसपर्सनल बाउंड बाय ट्रांसकॉग्निटिव स्टेट्स. तो इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि ये जो पर्सन होता है, कोई भी पर्सन होता है, जीव होता है, वो आइसोलेटेड नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर मैं हूँ तो वो सिर्फ मैं आइसोलेशन में नहीं हूँ, मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, ठीक है, मैं एक बहुत बाउंडेड हूँ, ठीक है. सो द पर्सन इज कॉन्शियसनेस एम्बॉडीड, मीनिंग जो भी कोई पर्सन है उसके बॉडी में एक कॉन्शियसनेस होती है. जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर, उन सब के अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है. So consciousness as such is irreducibly distinct from material objects including the brain and mind. तो consciousness को अगर हम as such बात करें तो consciousness जो है that is not material, ठीक है. material as in कि वो किसी भी sensory senses के थ्रू आप नहीं उसको जान सकते. like you can't see it, you can't hear it, you can't feel it, you can't taste it and you can't smell it. ओके, सो ये एक बहुत ही इमटेरियल चीज़ है. एंड इस कॉन्शियसनेस में आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉन्शियसनेस डजंट इंक्लूड ब्रेन एंड माइंड. कॉन्शियसनेस में बॉडी का कोई भी बॉडी का पार्ट इंक्लूड नहीं होता है, कोई भी मटेरियल पार्ट, ठीक है. एंड दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑल्सो इंक्लूड द ब्रेन एंड माइंड. So mind is different from consciousness as well as body brain machine. Unlike consciousness, the mind is material albeit subtle. तो जो mind है हमारा, जो मन है हमारा, वो material है although subtle है, ठीक है. Unlike the brain, mind has non-local characteristics that it is not constrained by time and space variables as gross materials objects are. इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारी बाकी बॉडी एक टाइम और स्पेस वेरिएबल के कंस्ट्रेन में है, एक पर्टिकुलर स्पेस है अर्थ पे जो हमने ऑक्यूपाई, जो हमारी बॉडी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और एक हम पर्टिकुलर टाइम के लिए इस अर्थ पर आते हैं, ठीक है. तो वो जो वेरिएबल्स हैं, हमारी जो बॉडी है वो टाइम और स्पेस के कंस्ट्रेंट में रहती है. लेकिन जो हमारा माइंड है दैट इज़ नॉट कंस्ट्रेंड बाय टाइम एंड स्पेस. कैसे? क्योंकि माइंड कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, प्लस
माइंड में टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। मतलब अगर आप आज यहाँ हो तो आप बैठे बैठे पास्ट में भी जा सकते हो, फ्यूचर में भी जा सकते हो। ओके, सो माइंड जो है वो एक तरीके से इनविजिबल है, नॉन लोकल है, उसका कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है, कोई टाइम फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन स्टिल माइंड इज मटीरियल, वेरी सटली मटीरियल। ओके, so time and space are superimposed by the mind and they are thus the creations of mind। तो जो ये time और space variables हैं that are nothing but the creations of mind, जिन्हें हमें हमारे mind ने उनमें बनाया है। reality में time and space are not there, it is a mind which has made them and made a body under constraints of time and space। so next हम next video में करेंगे।